ایک ہری بھری گھاٹی میں ایک بڑا سا مکان تھا۔ اس میں 2 بھائی اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑا بھائی چمبارے بڑا چاق و چوبند اور عقل مند آدمی تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد خاندان کا سارا کاروبار وہی دیکھتا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی سیرنگ اس کے مقابلے میں بہت سیدھا سادہ اور رحم دل تھا، لیکن ساتھ ہی کاہل بھی تھا۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ گھر کے کاموں میں مدد کرے، لیکن وہ اتنا ذہین نہیں تھا کہ ان کاموں کو اچھی طرح کر سکے۔ تھوڑے دنوں تک تو بڑا بھائی یہ رویہ برداشت کرتا رہا، پھر اس نے جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ بس بہت ہو گیا، میں یہاں محنت کروں اور یہ آرام سے بیٹھ کے کھاتا رہے، بس اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ سیرنگ، یہاں سیرنگ۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ دیکھو سیرنگ، میں بہت محنت کرتا ہوں، اس کے بعد یہ گھر چلتا ہے، لیکن جب سارے ہی بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑیں گے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ ہاں دیکھو سیرنگ، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، تم کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزمائی کرو۔ چھوٹے بھائی کو اس کی اس بات سے بہت تکلیف پہنچی، لیکن اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے پاس 2-4 چیزیں تھیں، انہیں اس نے بیگ میں ڈالا اور ماں کے پاس جا کر رخصت ہونے کی اجازت مانگی اور بولا، اماں میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں اب خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی آخر کہاں تک میرا بوجھ اٹھائے، وہ بھی تنگ آ گیا ہے، لیکن میں اسے الزام نہیں دوں گا، بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ماں صدمے سے اپنے بیٹے کی باتیں سنتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہارے بھائی نے تمہیں نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں ایسے بے رحم انسان کے ساتھ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں بیٹے۔ دونوں ماں بیٹے گھر سے چلے گئے۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئے۔ اب دوپہر ہو گئی تھی اور وہ ایک جھونپڑی کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ ایک بڑے سے پہاڑ کے دامن میں بنی یہ جھونپڑی شہر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اماں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں وہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ تھکے ہوئے تو تھے ہی، اسی لیے جلد ہی بے خبر سو گئے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو دن ختم ہو چکا تھا اور رات ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک جھونپڑی میں کوئی واپس نہیں آیا تو وہ رات گزارنے کے لیے اندر چلے گئے۔ تو پھر اندر چلتے ہیں بیٹے۔ اگلے دن سیرنگ صبح جلدی اٹھ گیا۔ اس کی ماں ابھی سو ہی رہی تھی۔ وہ کلہاڑی لے کر پہاڑی پر لکڑی کاٹنے کے لیے چل دیا۔ شام تک اس نے بہت سی لکڑیاں کاٹ لی۔ ان لکڑیوں کو جمع کر کے وہ شہر لے گیا اور اچھے داموں میں بیچ آیا۔ اپنے دن بھر کی محنت کا صلہ ملنے پر وہ بہت خوش تھا۔ سیرنگ بیٹے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اماں آج آپ کا بیٹا بہت خوش ہے، بہت خوش۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر کیوں خوش ہے میرا بیٹا؟ اس نے اپنی ساری دن کی کمائی اپنی ماں کو دے دی۔ ماں یہ میری پہلی محنت کی کمائی ہے۔ ماں آج میں نے سارا دن لکڑیاں کاٹی ہیں اور انہیں شہر میں بیچ کر آیا ہوں۔ پھر کئی دنوں تک وہ اسی طرح سے محنت کرتا رہا۔ ایک دن وہ صبح اٹھ کر اوپر کی پہاڑی پر اچھی لکڑی کی تلاش میں جا رہا تھا۔ تبھی یہ ایک ایسے کونے میں پہنچ گیا جو ایک بہت بڑی چٹان سے چھپا ہوا تھا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ ایک پتھر کا شیر کھڑا ہے۔ یہ شیر سچ مچ کے شیر جیسا تھا۔ ارے! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پہلے تو وہ بری طرح سے ڈر گیا، پھر جب اس نے اسے بغور دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ پتھر کا شیر ہے۔ میں تو ڈر ہی گیا۔ اچانک اس پتھر کے شیر سے آواز آنے لگی، بیٹے تم بہت نیک دل ہو، اس لیے میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ کل صبح تم پھر آنا، لیکن اس بار ساتھ میں ایک بڑی سی بالٹی بھی لیتے آنا۔ پہلے تو سیرنگ ڈر گیا، پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، مگر وہ کیوں؟ وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور گھبراؤ مت، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب سیرنگ تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد وہ واپس چلا آیا۔ اگلے دن سیرنگ نے بازار میں لکڑیاں بیچ کر اس سے ایک بالٹی خریدی اور یہ بالٹی لے کر پہاڑی کی اسی طرف گیا جہاں وہ پتھر کا شیر تھا۔ او تم آ گئے ہو، اب جیسا جیسا میں کہوں کرتے جاؤ۔
तुम ये बाल्टी मेरे मुंह के नीचे लगा दो, मैं इसमें सोना भर दूंगा। जैसे ही बाल्टी भरने के करीब हो तुम मुझे रुक जाने को कहना। जरा सा भी सोना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। सैरंग ने वही किया जो कहा गया था। उसने बाल्टी शेर के मुंह के नीचे लगा दी और फिर क्या था, उसमें से सोने के टुकड़ों का आबशार सा गिरने लगा। जब टोकरी भर गई तो इसने शेर को पुकार कर बता दिया, बाल्टी भर गई है। और फिर एकदम वो सोने का आबशार रुक गया। सैरंग उसका शुक्रिया अदा करके बाल्टी अपनी माँ के पास लेकर आया। अरे सैरंग, कि इतना सारा सोना कहाँ से आया है तुम्हारे पास? पहले तो वो इतना सारा सोना देखकर हक्का बक्का रह गई, लेकिन जब बेटे ने सारी कहानी सुनाई तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। क्या सच कह रहे हो बेटे? या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करे कम है। तूने हमारी सुन ली मेरे मालिक, तूने हमारी सुन ली। अब माँ और बेटा ऐशो आराम से रहने लगे। उन्होंने एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीदकर खेती बाड़ी शुरू की और बहुत से बैल और भेड़े पाल ली। अब तो उनकी ऐसी शान थी कि कई नौकर उनके घर और खेत में काम करते थे। उधर चंबारे के पास भी अपने भाई और माँ की ऐशो आराम और शोहरत की खबर पहुंची। आखिर ये सब कैसे हो गया? बहुत ताज्जुब की बात है। जो मेरा निकम्मा भाई उठ के पानी तक ढंग से नहीं पी सकता, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे खुद जाकर मालूम करना चाहिए। आखिर पता तो चले कि हकीकत क्या है। और फिर वो एक दिन छोटे भाई के घर जाने के लिए सफर पर रवाना हो ही गया। दस्तूर के मुताबिक उसने तोहफे में देने के लिए एक कपड़ा मंगवाया जो उसने बैग में रख लिया। इसे अपने भाई के घर का पता मालूम ना था। ये लोगों से पूछ पूछ कर अपने भाई के घर तक पहुंचा। माँ और छोटा भाई चंबारे को देखकर बहुत हैरान हुए। भाई आप? छोटे भाई और माँ ने बहुत खुलूस से इसका खैर मकदम किया। आज तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मेरे जरा सा गुस्सा करने पर तुम घर छोड़कर आ गए। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें कोई अंदाजा है? मुझे माफ कर दे भाई, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे निकाल दिया घर से। अगर मैं उस दिन ना आता तो आज मैं यहाँ ना पहुँचता। लेकिन ये सब तुम्हें मिला कैसे? सैरंग ने सारा हाल बताया कि किस तरह उसकी किस्मत ने पलटा खाया। जो कुछ बड़ा भाई मालूम करना चाहता था अब उसे मालूम हो गया था। इसने खाना वगैरह खाया और उनसे इजाजत चाही। अब मैं चलता हूँ अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बेटे। बहू को मेरा सलाम कहना। हाँ जी ठीक है माँ। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस शेर तक पहुंच जाए। वो इतना बेचैन था कि अगले दिन सुबह ही वो जाकर बाजार से बाल्टी खरीद लाया और उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपने भाई की एक एक बात बड़े गौर से सुनी थी, इसलिए वो उस शेर की जगह पर बगैर किसी दुश्वारी के पहुंच गया। पत्थर से बना हुआ शेर का वो मुजस्समा अपने पूरे जाहो जलाल और शान के साथ वहां अस्तादा था। तुम कौन हो? शेर की आवाज सुनकर चंबारे बुरी तरह से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं उसी लड़के का भाई हूँ जिसको आपने बहुत सी दौलत दी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी आप उसी तरह से सोना दे दे। ठीक है, बाल्टी मेरे मुंह से लगा दो, मेरे मुंह से सोना निकलेगा। लेकिन देखो, होशियार रहना। जैसे ही बाल्टी भरने के करीब हो मुझे बता देना। अगर सोने का एक भी टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा तो मुसीबत में आ जाओगे। चंबारे बाल्टी को शेर के मुंह के करीब रखकर खड़ा हो गया और पलक झपकते ही बाल्टी में सोने का आबशार गिरने लगा। वो बड़े शौक से ये मंजर देख रहा था। उसे इससे ज्यादा खूबसूरत मंजर और कोई नहीं लगा था। वो सोच रहा था, मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। उफ,
कितना अमीर, सब मुझे देखकर हसद से मर जाएंगे। वो लालची तो था ही, उन ख्यालों में ऐसा गर्क हुआ कि वक्त का अंदाजा ही ना लगाया। बाल्टी पूरी भर गई थी लेकिन वो शेर को बताना बिल्कुल भूल गया। एकदम एक सोने का टुकड़ा जमीन पर गिरा और इसके गिरते ही वो सोने का आबशार भी रुक गया। बेवकूफ, ये तूने क्या किया? सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा मेरे हलक में अटक गया है। जितनी जल्दी निकाल सकते हो इसे मेरे मुंह से निकाल लो। चंबारे नजदीक गया और अपना हाथ शेर के मुंह में डाल दिया ताकि वो सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा निकाल ले। शेर के मुंह में हाथ डालते ही चंबारे इसी तरह पत्थर का बनकर साकित खड़ा हो गया। चंबारे ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपना हाथ छुड़ा ले लेकिन कामयाब ना हुआ। जैसे ही चंबारे ने बाल्टी पर नजर डाली तो हैरान रह गया। सोने से भरी हुई बाल्टी में एक टुकड़ा भी सोने का ना था। वो फूट फूट कर रोने लगा। लालच में पड़कर वो सारे सोने से हाथ धो बैठा था और अब इस सुनसान और अकेली जगह में जकड़ा हुआ था। दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान ना था। पहाड़ों के भयानक साए उसे डरा रहे थे। ये सोच सोच कर उसका दम निकला जा रहा था। अगर मुझे कोई तलाश करने न आया तो, अगर मुझे कई दिन तक किसी मुसीबत में गिरफ्तार रहना पड़ा तो क्या होगा मेरा? या खुदा, मैं कहाँ फंस गया हूँ। शाम हो रही थी और चंबारे घर नहीं पहुँचा था। इसकी बीवी अब बहुत फिक्रमंद हो रही थी। उसने तो कहा था कि आज वो जल्दी घर आ जाएगा। पूरा दिन बीत गया है मगर वो अभी तक क्यों नहीं लौटा? या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह खैर करना। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं कहाँ है, पूरा दिन बीत गया है। क्या होगा पता नहीं कहाँ है। अब तो मारे फिक्र के उसका बुरा हाल था। आखिर वो सैरंग के पास पहुंची। सैरंग, ना जाने तुम्हारे भाई कल से कहाँ चले गए हैं। कल तुम्हारे घर से आए हैं, उसके बाद बाजार गए हैं सुबह उठकर। ना जाने अब तक घर वापस क्यों नहीं आए। सैरंग, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे भाई कुछ करो, कहीं से लाओ। इतनी देर कभी नहीं होती। ना जाने वो किस हाल में होंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप परेशान न हो भाभी, मैं देखता हूँ। आप प्लीज बैठे, मैं ढूंढ लाऊंगा भाई को। आप परेशान ना हो। सैरंग अब अच्छी तरह समझ गया था कि उसका भाई कहाँ गया है। वो सीधा उस पहाड़ी पर पहुँचा। जब सैरंग वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके भाई का हाथ शेर के मुंह में है और वो शेर की तरह साकित खड़ा हुआ है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे भाई को छोड़ दे। मेहरबानी करे, मेरे भाई को छोड़ दे। सैरंग की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने उसके भाई को छोड़ दिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। चंबारे अपनी लालच पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत गलत किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने हर किए पर। चंबारे ने कसम खाई कि अब वो फिर कभी लालच ना करेगा। सैरंग बहुत रहमदिल और नेक नियत था। कोई बात नहीं भाई, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, आप भी भूल जाए। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारें और फिर कभी भी लालच में दोबारा ना पड़े। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत का दावा करते हैं तो उनकी सबसे कीमती निशानियाँ यानी आपके बहन भाई, उनसे भी मोहब्बत करें और उनका ख्याल रखें। अगर आपके बहन भाई राजी तो माँ बाप राजी, माँ बाप राजी तो रब राजी और रब राजी तो सब राजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर विजिट कर रही थी तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। थैंक यू।